Hello students, topic bills of exchange. We are going to start with journal entries, but journal entries से पहले हमें कुछ important terms देखना है of bill of exchange. First term is due date. Due date is that date on which drawee makes payment of the bill. जिस डेट में ड्रॉवी बिल का पैसा पे करने वाला है, दैट डेट इज ड्यू डेट. नाउ ये ड्यू डेट हम किस तरह से कैलकुलेट करने वाले? फर्स्ट, इफ इट इज गिवन इन केस ऑफ बिल्स पेएबल आफ्टर डेट, अगर आपको दिया है, वी विल टेक अ एग्जाम्पल. अ बिल डेटेड 12th June 2019 is payable 2 months after date. तो लास्ट में लिखा हुआ है आफ्टर डेट. इट मीन्स ड्रॉवी बिल का पैसा पे करेगा आफ्टर 2 months. तो अभी यहाँ पर हमें ड्यू डेट कैलकुलेट करना है. ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए डेट ऑफ बिल हमें कंसिडर करना है. डेट ऑफ बिल इज गिवन 12th June 2019 और टेन्योर ऑफ द बिल दिया हुआ है 2 months. तो मंथ दिया हुआ है तो हमें मंथ में ऐड करना है. तो अगर हम 2 months को ऐड करते तो नॉमिनल ड्यू डेट विल कम 12th August 2019. What is nominal due date? Date which is calculated without adding grace days. ग्रेस डेज ऐड करने से पहले जो डेट आता है दैट इज नॉमिनल ड्यू डेट. और ये नॉमिनल ड्यू डेट में हमें 3 days ग्रेस ऐड करना है. व्हाट आर ग्रेस डेज? 3 extra days allowed by law to the drawee to make payment of the bill. ड्रॉवी को हमेशा 3 days एक्स्ट्रा मिलता है टू मेक पेमेंट ऑफ द बिल. तो हमें इसमें 3 days ग्रेस ऐड करना है. अगर हम इसमें 3 days ग्रेस ऐड करते तो लीगल ड्यू डेट विल कम 15th August 2019. Now, since 15th August is a public holiday, due date, legal due date will fall on 14th August 2019. So, legal due date, whenever it falls on public holiday, तो हमें preceding day को legal due date consider करना है. So, legal due date is the date which is arrived after adding 3 days of grace. Now we will take another example in case of bills payable after sight. अगर after date दिया है तो हम date of bill को consider करके उसमें tenure और 3 days grace add करते. But if it is given after sight, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में दिया है, a bill dated 12th June 2019 is payable 2 months after sight. It was accepted on 14th June 2019. So अगर आपको आफ्टर साइट दिया हुआ है तो हमें डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कंसिडर करना है और उसमें हमें टेन्योर और ग्रेस डेज ऐड करना है. तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया हुआ है 14th June 2019. इसमें हमें टेन्योर पीरियड ऑफ द बिल ऐड करना है 2 months. तो नॉमिनल ड्यू डेट आएगा 14th August 2019 प्लस इसमें हमें 3 days ग्रेस ऐड करना है. तो लीगल ड्यू डेट आएगा 17th August 2019. So whenever it is given after date, तो हमारा कैलकुलेशन डेट ऑफ बिल से स्टार्ट होगा
और अगर आपको दिया है आफ्टर साइट, then we have to consider date of acceptance. Now next we have to see types of bill of exchange. So there are total 4 type of bill of exchange. The first one is trade bill. A trade bill which is drawn by a creditor, that is by a drawer on his debtor, that is drawee, with valuable consideration. ट्रेड बिल में बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस, सो इट इज अ जेन्यून ट्रेड ट्रांजैक्शन. सेकेंड टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज accommodation bill, and in this accommodation bill buying and selling does not take place. It is for mutual understanding. So a bill of exchange which has been drawn for mutual financial accommodation, such bill is drawn and accepted without any valuable consideration. इसका मतलब इसमें बाइंग एंड सेलिंग होता नहीं है. इसका मेन पर्पस है टू ओब्लाइज अ फ्रेंड. अगर किसी फ्रेंड को पैसे का जरूरत है, देन वन पर्सन ड्रॉज अ बिल ऑन अनदर पर्सन, and it is without buying and selling of goods. That is called as accommodation bill. The third bill is inland bill. नाम से ही मालूम पड़ता है, a bill of exchange which is drawn between two parties that are located or resides in the same country. That is called as inland bill. And the fourth and last one is foreign bill. A bill which is drawn in one country and made payable in another country. Now, after seeing types of bill, next we have to see accounting treatment of bill of exchange for a drawer. Drawer को bill receive होने के बाद, that is after acceptance of a bill by the drawee, the bill come back to the drawer and drawer उस bills receivable के साथ he can deal with 4 different ways. So there are 4 possibilities of bill of exchange. First possibility है retaining the bill till due date, means drawer will keep the bill with himself और ड्यू डेट के समय वो ड्रॉवी के पास से पैसा कलेक्ट करेगा. दैट इज कॉल्ड एज रिटेनिंग द बिल टिल ड्यू डेट. सेकेंड पॉसिबिलिटी इज डिस्काउंटिंग द बिल विद बैंक. डिस्काउंटिंग द बिल विद बैंक मीन्स सेलिंग द बिल टू बैंक बिफोर ड्यू डेट. अगर ड्रॉवर को अर्जेंटली पैसे का जरूरत है तो ड्रॉवी विल नॉट मेक पेमेंट बिफोर ड्यू डेट, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है दैट ही विल पे मनी आफ्टर 2 months. बट अगर ड्रॉवर को अर्जेंटली पैसे का जरूरत है तो ही विल सेल द बिल टू द बैंक. जनरली द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक वेयर ड्रॉवर इज हैविंग एन अकाउंट. अगर उसका बैंक में अकाउंट है तो जनरली उसी बैंक में ड्रॉवर बिल को डिस्काउंट करता है. द थर्ड पॉसिबिलिटी इज सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन. नाउ जो होल्डर ऑफ द बिल रहता है, दैट इज जिसके पास बिल है, ही विल सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन. बैंक विल एक्ट एज अ मिडलमैन. बैंक विल गो टू द ड्रॉवी, वो ड्रॉवी के पास से पैसा कलेक्ट करेगा. सो बैंक फॉर कलेक्शन मीन्स बैंक विल कलेक्ट द मनी ऑन बिहाफ ऑफ होल्डर ऑफ द बिल. और लास्ट पॉसिबिलिटी है एंडोर्सिंग द बिल. एंडोर्सिंग द बिल मीन्स ट्रांसफरिंग द बिल. सो दीज आर द 4 possibilities in which drawer can deal with the bills receivable. Now we have to see journal entries जो हमें पास करने के लिए आएगा in the book of
ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन अगर दिया है फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ड्रॉवर इज अ सेलर, ड्रॉवर गुड्स सोल्ड करता है, एंड ड्रॉवी इज बायर, ही विल परचेज द गुड्स। सो अगर गुड्स को सोल्ड किया है बाय द ड्रॉवर ऑन क्रेडिट बेसिस, तो ड्रॉवर अपने बुक में क्या जर्नल एंट्री पास करेगा? सिंस गुड्स आर सोल्ड, सेल्स इज एन इनकम, तो हमें सेल्स को क्रेडिट करना है, एंड दिस गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस टू ड्रॉवी, सो ड्रॉवी इज रिसीवर। तो जर्नल एंट्री हमें पास करना है ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये सेम ट्रांजैक्शन के लिए ड्रॉवी अपने बुक में एंट्री पास करेगा फॉर गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अगर ड्रॉवी ने गुड्स परचेज किया है, परचेज इज एन एक्सपेंस, हमें एक्सपेंस को डेबिट करना है, परचेज को डेबिट करना है, एंड ये गुड्स परचेज किया हुआ है ड्रॉवी ने फ्रॉम ड्रॉवर, तो ड्रॉवर इज गिवर, इसलिए हमें ड्रॉवर को क्रेडिट करना है। तो जर्नल एंट्री विल कम परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। गुड्स बाइंग एंड सेलिंग के बाद नेक्स्ट ड्रॉवर विल प्रिपेयर अ बिल, वो बिल को बनाएगा, और बिल बनाने के बाद ही विल गिव द बिल टू ड्रॉवी। ड्रॉवी का काम है उस बिल को एक्सेप्ट करना है, दैट मीन्स ही हैज टू साइन दैट बिल, और सिग्नेचर के बाद बिल वापस से ड्रॉवर के पास आएगा। सो नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमें पास करना है फॉर एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। ड्रॉवर को हमेशा एक्सेप्टेंस मिलता है, एंड एक्सेप्टेंस इज गिवन बाय द ड्रॉवी। whenever drawer will pass journal entry for the bill, drawer हमेशा bills receivable लिखेगा, and in the book of drawee he will write bills payable. So drawee bill के ऊपर साइन करता है, and bill again come to the drawer. So for the drawer, bills receivable is an assets. So bill comes in and drawee is giver. तो जर्नल एंट्री हमें पास करना है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। नाउ ये सेम ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ ड्रॉवी, इट विल कम फॉर एक्सेप्टेंस गिवन। एक्सेप्टेंस इज ऑलवेज गिवन बाय द ड्रॉवी। ड्रॉवी बिल के ऊपर साइन करके वो बिल ड्रॉवर को देता है। सो इफ ड्रॉवी इज गिविंग द बिल, तो ड्रॉवर इज रिसीवर एंड बिल गोज आउट। तो ड्रॉवी के बुक में जर्नल एंट्री आएगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। नाउ वी विल टेक द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। अगर ड्रॉवर ने अपने पास ही बिल रिटेन किया हुआ है, अपने पास ही रखा है, एंड एट द टाइम ऑफ ड्यू डेट अगर वो ड्रॉवी के पास जा रहा है पैसा कलेक्ट करने के लिए after 2 months, and if drawee refuse to make payment of the bill, then that bill is dishonored. Dishonor of a bill means if drawee does not make payment of the bill on due date, तो बिल डिसऑनर्ड हो जाता है। इसका मतलब बिल कैंसिल हो जाता है, और बिल कैंसिल होने के बाद सिंस ड्रॉवी के पास पैसा नहीं है, तो देन नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? रिन्यूअल ऑफ अ बिल। इट मीन्स कैंसलेशन ऑफ ओरिजिनल बिल एंड प्रिपरेशन ऑफ न्यू बिल। तो ड्रॉवी को और कुछ मंथ मिलता है नया बिल का पैसा पे करने के लिए, बट फॉर दैट ही हैज टू पे इंटरेस्ट। बट सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री पास करना है in the book of drawer and drawee for dishonor of a bill, that is cancellation of a bill. अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो ड्रॉवर बिल को कैंसिल करेगा, एंड ही विल गिव बिल टू द ड्रॉवी। सो ड्रॉवी को बिल मिलता है, ड्रॉवर अपने बुक में जर्नल एंट्री पास करेगा ड्रॉवी अकाउंट डेबिट
एंड सिंस ड्रॉवर ने बिल रिटेन किया था, खुद के पास रखा था टिल द ड्यू डेट, तो ड्रॉवी विल गिव द बिल, सो बिल विल गो आउट, बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करना है. इन द बुक ऑफ ड्रॉवी फॉर डिसऑनर ऑफ अ बिल हमें जर्नल एंट्री पास करना है, ड्रॉवी को बिल मिलेगा, सो बिल्स पेएबल अकाउंट को डेबिट करना है एंड दैट बिल विल बी गिवन बाय द ड्रॉवर, सो ड्रॉवर इज गिवर. डिसऑनर का एंट्री ड्रॉवी के बुक में पास करते समय जो एक्सेप्टेंस का एंट्री हमने पास किया है ड्रॉवी के बुक में, उसी एंट्री को हमें रिवर्स करना है. तो अगर हम जर्नल एंट्री को रिवर्स करते तो डिसऑनर का एंट्री आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट. Now after cancellation of a bill, that is after dishonor of a bill, ड्रॉवी को कुछ एक्स्ट्रा टेन्योर मिलता है, एक्स्ट्रा पीरियड मिलता है बिल का अमाउंट पे करने के लिए. सो इफ ड्रॉवर इज एग्रीइंग टू दिस, ड्रॉवर विल चार्ज इंटरेस्ट. फॉर ड्रॉवर इंटरेस्ट इज एन इनकम एंड फॉर ड्रॉवी इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस. तो अभी हमें नेक्स्ट जर्नल एंट्री पास करना है फॉर इंटरेस्ट चार्ज्ड. सबसे पहले इंटरेस्ट चार्ज करना है और उसके बाद फिर इंटरेस्ट आइदर पार्ट पेमेंट के साथ रिसीव होगा या फिर न्यू बिल के साथ रिसीव होगा. बट सबसे पहले हमें इंटरेस्ट चार्ज्ड का एंट्री पास करना है. इंटरेस्ट अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम ड्रॉवी, ड्रॉवी के पास से पैसा मिलने वाला है ड्रॉवर को, तो हमें ड्रॉवी अकाउंट डेबिट करना है बिकॉज अमाउंट इज रिसीवेबल एंड इंटरेस्ट इज एन इनकम फॉर द ड्रॉवर, तो हमें इंटरेस्ट को क्रेडिट करना है. ये सेम ट्रांजैक्शन के लिए हमें ड्रॉवी के बुक में भी एंट्री पास करना है. इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मंथ्स. इंटरेस्ट हमेशा रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है. नाउ फॉर दिस सेम ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ ड्रॉवी द जर्नल एंट्री विल कम इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस फॉर द ड्रॉवी, तो हमें इंटरेस्ट को डेबिट करना है. तो जर्नल एंट्री आएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट. ड्रॉवर को इसलिए क्रेडिट किया है बिकॉज अमाउंट इज पेएबल फॉर ड्रॉवी टू द ड्रॉवर. नाउ बिल कैंसल होने के बाद ड्रॉवर विल ऑलवेज आस्क फॉर पार्ट पेमेंट. अगर ओरिजिनल बिल 10,000 का है, ड्रॉवी के पास 10,000 रुपीज नहीं था इसलिए उसने बिल कैंसिल किया है. अगर उसके पास 10,000 रुपीज नहीं है, ड्रॉवर विल ऑलवेज आस्क फॉर सम अमाउंट, ही विल ऑलवेज आस्क फॉर अ पार्ट पेमेंट. तो अगर ड्रॉवी के पास उतना अमाउंट रहेगा तो ड्रॉवर सबसे पहले वो अमाउंट कलेक्ट करेगा एंड देन ऑन द रिमेनिंग इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड. इंटरेस्ट हमेशा रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करना है. इंटरेस्ट के बाद अगर प्रॉब्लम में दिया है कि पार्ट पेमेंट ड्रॉवर को रिसीव हुआ है, देन जर्नल एंट्री हमें पास करना है ड्रॉवर को सिंस पार्ट पेमेंट रिसीव हो रहा है. सो फॉर ड्रॉवर कैश कम्स इन, आइदर पैसा कैश में मिलेगा या चेक से मिलेगा, तो हमें जर्नल एंट्री पास करना है कैश बैंक अकाउंट डेबिट बिकॉज कैश कम्स इन या चेक से मिला है तो बैंक इज रिसीवर और ये अमाउंट पे किया है ड्रॉवी ने, तो ड्रॉवी इज गिवर. फॉर दिस सेम ट्रांजैक्शन दैट इज फॉर पार्ट पेमेंट मेड, ड्रॉवी पैसा पे करेगा. सो इफ ड्रॉवी इज मेकिंग पेमेंट कैश विल गो आउट, कैश को क्रेडिट करना है एंड अमाउंट वो पे करेगा ड्रॉवर को, तो ड्रॉवर इज रिसीवर. जर्नल एंट्री विल कम ड्रॉवर अकाउंट डेबिट
टू कैश बैंक अकाउंट। और पार्ट पेमेंट का जर्नल एंट्री पास करने के बाद नेक्स्ट एंट्री हमें पास करना है फॉर रिमेनिंग अमाउंट, दैट इज फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ अ न्यू बिल। सो अगेन ड्रॉवर एक नया बिल प्रिपेयर करेगा फॉर द रिमेनिंग अमाउंट। ही विल गिव द बिल टू ड्रॉवी, ड्रॉवी उस बिल के ऊपर साइन करेगा एंड देन दैट बिल विल बी रिसीव्ड बाय द ड्रॉवर। सो एक्सेप्टेंस का हमें सेम जर्नल एंट्री पास करना है जो हमने ऊपर सेकेंड जर्नल एंट्री लिखा है। फॉर ड्रॉवर बिल कम्स इन एंड ड्रॉवी इज गिवर, तो जर्नल एंट्री आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। एंड फॉर दिस सेम ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ ड्रॉवी, ड्रॉवी इज गिविंग द एक्सेप्टेंस। सो फॉर न्यू बिल एक्सेप्टेंस गिवन, ड्रॉवी बिल के ऊपर साइन करके वो ड्रॉवर को देगा। सो फॉर ड्रॉवी, ड्रॉवर इज रिसीवर, तो ड्रॉवर को डेबिट करके बिल्स पेएबल क्रेडिट करना है। ड्रॉवी के भी बुक में हमें सेम जर्नल एंट्री पास करना है जो हमने सेकेंड जर्नल एंट्री ड्रॉवी के बुक में एक्सेप्टेंस का लिखा है। सो जर्नल एंट्री विल कम ड्रॉवर अकाउंट डेबिट to bills payable account. And next entry we have to see for honoring of bill of exchange. Dishonor का मतलब होता है if drawee does not make payment on due date. Honoring means if drawee makes payment of the bill on the due date. अगर drawee bill का पैसा पे कर रहा है then what journal entry will come in ड्रॉवर एंड ड्रॉवी बुक। सबसे पहले हम ड्रॉवर के बुक में जर्नल एंट्री देखते फॉर बिल हॉनर्ड और फॉर बिल मेट ऑन ड्यू डेट। अगर ड्रॉवी बिल का पैसा पे कर रहा है तो ड्रॉवर को अमाउंट मिलेगा, कैश विल कम इन। और एक बार उसे नया बिल का पैसा मिलेगा तो ही विल गिव द न्यू बिल बैक टू द ड्रॉवी। So cash comes in and bills receivable goes out. तो जर्नल एंट्री आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। फॉर दिस सेम ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ ड्रॉवी द जर्नल एंट्री विल कम ड्रॉवी पैसा पे कर रहा है, सो कैश विल गो आउट एंड ही विल रिसीव द बिल। तो जर्नल एंट्री आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट to cash bank account. So this was the first possibility जहां पर ड्रॉवर ने बिल अपने पास ही रिटेन किया है एंड एट द टाइम ऑफ ड्यू डेट वो बिल डिसऑनर हुआ है। नाउ वी विल टेक द सेकेंड पॉसिबिलिटी इफ द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। डिस्काउंटिंग एज अर्लियर डिस्कस्ड, अगर ड्रॉवर को अर्जेंटली पैसे का जरूरत है तो ड्रॉवी उसे पैसा पे नहीं करेगा बिकॉज ड्रॉवी ने प्रॉमिस किया है दैट ही विल पे अमाउंट ओनली आफ्टर 2 months. सो व्हाट ड्रॉवर कैन डू, ही कैन डिस्काउंट द बिल विथ हिज बैंक जहां पर उसका बैंक अकाउंट है। बैंक क्या करेगा, उसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट करेगा और डिडक्ट करने के बाद ड्रॉवर को बाकी का अमाउंट पे करेगा। सो ड्रॉवर विल रिसीव द अमाउंट फ्रॉम द बैंक और वो अमाउंट डायरेक्टली ड्रॉवर का बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा। सो अमाउंट विल गो टू द बैंक। तो हमें इसके लिए एक कंबाइंड जर्नल एंट्री पास करना है। ड्रॉवर का बैंक रिसीवर है तो हमें बैंक को डेबिट करना है। जो अमाउंट बैंक डिडक्ट कर रहा है एज डिस्काउंटिंग चार्जेस, दैट अमाउंट इज अ लॉस फॉर द ड्रॉवर, तो वो अमाउंट को भी डेबिट करना है। वी हैव टू डेबिट बैंक, वी हैव टू डेबिट डिस्काउंट अकाउंट एंड सिंस ड्रॉवर इज सेलिंग द बिल तो बिल विल गो आउट। और ये डिस्काउंट भी कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है
अमाउंट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मंथ्स। तो हम सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करते इन द बुक ऑफ ड्रॉवर, और ये सेकंड पॉसिबिलिटी है इफ बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। कंबाइन एंट्री पास करना है, बैंक अकाउंट डेबिट फॉर द अमाउंट रिसीव्ड बाय ड्रॉवर्स बैंक, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट जितना पैसा बैंक डिडक्ट कर रहा है एज डिस्काउंटिंग चार्जेस उतना अमाउंट लॉस है, एंड बिल गोज आउट तो इट विल कम टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये सेम ट्रांजैक्शन के लिए इन द बुक ऑफ ड्रॉवी नो एंट्री आएगा, बिकॉज ड्रॉवी को इस ट्रांजैक्शन के बारे में पता नहीं है। दिस ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस बिटवीन ड्रॉवर एंड अ बैंक, एंड इट हैज टेकन प्लेस बिफोर ड्यू डेट। सो इसलिए ड्रॉवी अपने बुक में नो एंट्री पास करेगा। नाउ whenever a bill is dishonored after discounting with the bank, तो हमें डिसऑनर का एंट्री देखना है। तो इन द बुक ऑफ ड्रॉवर फॉर बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक एंड डिसऑनर्ड, तो ड्रॉवर उसके लिए जर्नल एंट्री पास करेगा। डिसऑनर के बाद बिल हमेशा ड्रॉवी को मिलेगा, एंड दैट बिल will be given to the drawee by the bank। तो ड्रॉवर अपने बुक में लिखेगा कि बिल किसे रिसीव हुआ है एंड हु इज द गिवर ऑफ द बिल। सो रिसीवर इज ड्रॉवी, तो डिसऑनर का एंट्री आएगा ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बिकॉज बैंक इज गिवर, एंड डिसऑनर का एंट्री इन द बुक ऑफ ड्रॉवी विल रिमेन सेम। Bill will come in and he will credit drawer account because उसे डिस्काउंटिंग के बारे में कुछ पता नहीं है। सो इन द बुक ऑफ ड्रॉवी डिसऑनर का हमेशा सेम एंट्री आएगा, चाहे वो बिल रिटेन्ड किया है या बिल डिस्काउंट किया हुआ है। ड्रॉवी विल ऑलवेज राइट बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू सी रिगार्डिंग नोटिंग charges। now whenever a bill is dishonored, डिसऑनर होने के बाद उस बिल का, डिसऑनर बिल का द होल्डर ऑफ द बिल वो नोटिंग कर सकता है। नोटिंग कैन बी डन टू द नोटेरी पब्लिक। नोटेरी पब्लिक ये एक गवर्नमेंट सर्वेंट रहता है। ही इज अपॉइंटेड आइदर बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसका काम है टू रिकॉर्ड द फैक्ट्स ऑफ डिसऑनर ऑफ अ बिल। और ये फैक्ट्स रिकॉर्ड करने के लिए वो कुछ अमाउंट चार्ज करता है, एंड दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज नोटिंग चार्जेस। नाउ व्हाट आर नोटिंग चार्जेस? नोटिंग चार्जेस आर द फीस चार्ज्ड बाय नोटेरी पब्लिक टू रिकॉर्ड द फैक्ट्स ऑफ डिसऑनर ऑफ अ बिल। डिसऑनर का पूरा डिटेल्स एक रजिस्टर में लिखने के लिए ये जो पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो जो अमाउंट चार्ज करता है दैट अमाउंट इज नोटिंग चार्जेस। नाउ नोटिंग चार्जेस आर ऑलवेज पेड इनिशियली बाय द होल्डर ऑफ द बिल। अगर ड्रॉवर ने बिल अपने पास ही रिटेन किया है तो नोटिंग चार्जेस ड्रॉवर पे करेगा, और अगर ड्रॉवर ने वो बिल डिस्काउंट किया है बैंक में, देन नोटिंग चार्जेस विल बी पेड बाय द बैंक। बट अल्टीमेटली ये नोटिंग चार्जेस ड्रॉवी के पास से कलेक्ट किया जाता है। बिकॉज ऑफ ड्रॉवी ये बिल डिसऑनर्ड हुआ है और उसके वजह से ये एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। सो नोटिंग चार्जेस का जर्नल एंट्री हमें डिसऑनर के साथ ही पास करना है। इन द बुक ऑफ ड्रॉवर अगर बिल डिस्काउंट किया है और डिस्काउंट करने के बाद अगर डिसऑनर हुआ है तो बैंक विल पे नोटिंग चार्जेस, और जर्नल एंट्री में ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल बैंक को ऑलरेडी क्रेडिट किया है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, जो ओरिजिनल बिल का अमाउंट है उसमें हमें नोटिंग चार्जेस ऐड करना है और फिर डिसऑनर का अमाउंट लिखना है इन द बुक ऑफ ड्रॉवर।
if the bill is discounted and dishonored. But noting charges for the drawee, it is an expense. तो नोटिंग चार्जेस डिसऑनर का एंट्री में हमें डेबिट करना है. तो इन द बुक ऑफ ड्रॉवी जर्नल एंट्री आएगा फॉर नोटिंग चार्जेस अलोंग विथ डिसऑनर ऑफ अ बिल. तो ड्रॉवी के बुक में डिसऑनर का एंट्री पास करते समय हमें नोटिंग चार्जेस को भी डेबिट करना है, बिकॉज नोटिंग चार्जेस आर एक्सपेंस फॉर द ड्रॉवी. तो डिसऑनर का जर्नल एंट्री आएगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और फिर हमें एक्सेप्टेंस का एंट्री को रिवर्स करना है इन द बुक ऑफ ड्रॉवी. तो इट विल कम बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट. नाउ वी हैव टू सी द थर्ड पॉसिबिलिटी इफ द बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. अगर ड्रॉवर ने बिल बैंक के पास भेजा है कलेक्शन के लिए, तो इन द बुक ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉवी हमें क्या जर्नल एंट्री पास करना है. नाउ वेन एवर बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, द बिल विल गो आउट फ्रॉम द ड्रॉवर. तो हमें बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करना है, एंड दिस बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. तो हमें जो अकाउंट डेबिट करना है दैट विल कम बिल सेंड फॉर कलेक्शन. बिल सेंड फॉर कलेक्शन का जर्नल एंट्री आएगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. ये सेम ट्रांजैक्शन के लिए इन द बुक ऑफ ड्रॉवी वी हैव टू पास नो एंट्री, बिकॉज दिस ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस बिटवीन बैंक एंड ड्रॉवर. तो ड्रॉवी अपने बुक में फॉर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन के लिए नो एंट्री पास करेगा. नाउ आफ्टर सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, इफ द बिल इज डिसऑनर्ड, देन इन द बुक ऑफ ड्रॉवर हमें जर्नल एंट्री पास करना है ड्रॉवी अकाउंट डेबिट. वेन एवर अ बिल इज डिसऑनर्ड, बिल जब भी डिसऑनर होता है इन द बुक ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवी का नाम हमेशा डेबिट करना है, बिकॉज ड्रॉवी इज रिसीवर and we have to credit bill sent for collection account. Now along with dishonor of a bill, if suppose noting charges are given, अगर आपको ट्रांजैक्शन दिया है the bill is sent to bank for collection dishonored and noting charges paid. Now since bill was sent to bank for collection, तो bill was with bank, सो बैंक इज होल्डर ऑफ द बिल, तो बैंक को नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा. सो डिसऑनर के साथ हमें नोटिंग चार्जेस का एक कंबाइन जर्नल एंट्री पास करना है इन द बुक ऑफ ड्रॉवर. सिंस बैंक इज गिवर, तो हमें बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है. तो डिसऑनर का जर्नल एंट्री आएगा अलोंग विथ नोटिंग चार्जेस ड्रॉवी अकाउंट डेबिट to bill sent for collection account to bank account. And for this same transaction in the book of drawee same journal entry आएगा जो हमने रिकॉर्ड किया है, that is noting charges account debit, bills payable account debit to drawer account. And if जो बिल हमने सेंड किया हुआ है टू बैंक फॉर कलेक्शन, अगर वो हॉनर्ड होता है, in the book of drawer we have to pass journal entry bank account debit to bill sent for collection account. And honoring का entry in the book of drawee, it will always remain same. ड्रॉवी बिल का पैसा सिर्फ उस वक्त पे करेगा when he receives the bill. So in the book of drawee journal entry will come bills payable account debit to cash bank account. सो ये हमारा थर्ड पॉसिबिलिटी था दैट इफ ड्रॉवर इज सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन. नाउ वी हैव टू सी द लास्ट पॉसिबिलिटी इफ द बिल इज एंडोर्स्ड बाय द ड्रॉवर. एंडोर्समेंट ऑफ बिल मीन्स ट्रांसफर ऑफ बिल, एंड वेन एवर अ बिल इज एंडोर्स्ड, जब भी बिल को ट्रांसफर किया जाता है, there are two persons involved.
The first person is endorser. Endorser is a person who transfers the bill. And the second person is endorsee. Endorsee is a person on whom the bill is transferred. So bill is always endorsed या transferred to endorsee. तो endorsee को bill transfer कर रहे, endorsee is receiver, and bill transfer कर रहे तो bill will go out. So in the book of drawer for endorsement of bill, the journal entry will come endorsee account debit to bills receivable account. और bill endorse करने के बाद अगर bill dishonored हो जाता है तो dishonor का journal entry आएगा in the book of drawer drawee account debit. bill dishonor होने के बाद bill will be always received by the drawee, and since वो bill endorse किया था तो bill will be given by the endorsee. So endorsee is giver, तो हमें endorsee को credit करना है. And along with dishonor of a bill, अगर आपको noting charges दिया है तो noting charges will be paid by the holder of the bill, and holder of the bill is endorsee. तो endorsee को हमने already credit किया हुआ है. So if endorsed bill is dishonored and noting charges paid, तो journal entry same रहेगा, drawee account debit to endorsee account. हमें सिर्फ बिल का जो ओरिजिनल अमाउंट है उसमें हमें नोटिंग चार्जेस को प्लस करके अमाउंट रिकॉर्ड करना है. और अगर एंडोर्स किया हुआ बिल अगर हॉनर्ड हो जाता है देन इन द बुक ऑफ ड्रॉवर नो एंट्री विल कम, क्योंकि एंडोर्स किया हुआ बिल का पैसा अगर ड्रॉवी पे करता है देन अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय द एंडोर्सी. सो इसलिए इन द बुक ऑफ ड्रॉवर हमें नो एंट्री पास करना है. सो वेन एवर बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक, bill is sent to bank for collection और bill is endorsed, ये तीनों भी पॉसिबिलिटी के लिए इन द बुक ऑफ ड्रॉवर हमें बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करना है. कौन सा अकाउंट हमें डेबिट करना है दैट विल डिपेंड अपॉन ट्रांजैक्शन. अगर दिया हुआ है कि बिल को डिस्काउंट किया है तो हमें बैंक एंड डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करना है. इफ बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन then bill sent for collection account debit करना है. and if bill is endorsed तो हमें endorsee का account debit करना है. और ये तीनों भी possibility के लिए in the book of drawee हमें no entry pass करना है. and whenever we are passing entry in the book of drawer for dishonor of a bill तो हमेशा drawee का account debit करना है फॉर ऑल द फोर पॉसिबिलिटीज. कौन सा अकाउंट हमें क्रेडिट करना है दैट विल डिपेंड अपॉन द ट्रांजैक्शन. अगर ड्रॉवर ने बिल रिटेन्ड किया है तो हमें बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करना है. इफ बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक देन हमें बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है. इफ बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड देन हमें बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्रेडिट करना है. एंड अगर बिल एंडोर्स किया हुआ है डिसऑनर हो गया है तो हमें एंडोर्सी अकाउंट क्रेडिट करना है. एंड फॉर ऑल द फोर पॉसिबिलिटी इन द बुक ऑफ ड्रॉवी हमेशा हम एक ही जर्नल एंट्री पास करते दैट इज बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट.